Hello everyone, I'm Maitri Bharadwaj and you are seeing my channel. Before I start with the with the reading and with the explanation, I want your help. Please like, share and subscribe to my channel. Okay, so let's start. Double circulation. Today we are starting from double circulation. In the last lecture, I did till this electrocardiograph, and today I'm starting with double circulation. Right? The blood flows strictly by fixed route through blood vessels. Blood vessels, we all know, the arteries and the veins. Basically, each artery and vein consist of three layers. See, arteries and veins, and each artery and vein, they consist of three layers. The inner one that is lining is made up of squamous endothelium layer, tunica intima. The middle layer is a smooth muscle layer and is made up of elastic fibers, which is called as tunica media. And external layer is made up of fibrous connective tissue with collagen fiber called as tunica externa. So मतलब जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनकी तीन तीन लेयर्स होती हैं. जो अंदर की लेयर है द इनर मोस्ट लेयर उसको कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा. मिडिल की लेयर को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं एंड जो आउटर लेयर है दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना. उसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है दैट जो ट्यूनिका इंटीमा है वो किससे फॉर्म है? स्क्वामस एंडोथेलियम. ठीक. जो ट्यूनिका मीडिया है दैट इज फॉर्म फ्रॉम द स्मूथ मसल्स दैट आर नॉट अंडर ह्यूमन कंट्रोल, इनवॉलेंट्री होते हैं एंड इलास्टिक फाइबर्स. और जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है that is formed from the fibrous connective tissue, along with that the collagen fibers, right? The tunica media is comparatively thin in veins. Now the difference between artery and the veins वो आपको ट्यूनिका मीडिया में मिलेगी. जो मिडिल लेयर होती है वेन्स में ट्यूनिका मीडिया वो कंपैरेटिवली थिन होती है. ठीक है, वेन्स में जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिन होगी, जो आर्टरीज है उसमें ट्यूनिका मीडिया थिक होगी. ठीक है. As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery. As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery, whereas the left ventricle pumps blood into the aorta. ये तो पता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि कैसे कैसे ब्लड फ्लो करता है इन दी हार्ट, वो तो पता है. पहले जो ब्लड होता है फ्रॉम होल बॉडी पार्ट, ऊपर और नीचे, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आपके पल्मोनरी आर्टरी में जाता है. कौन से? आपके राइट आर्टरी में. फिर राइट आर्टरी में थ्रू द वाल्व्स, द ट्राइकस्पिड वाल्व्स के थ्रू वो आपका वेंट्रिकल्स में जाता है, राइट वेंट्रिकल. एंड देन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल थ्रू दिस पल्मोनरी आर्टरी इट मूव्स टू द लंग्स. फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका लेफ्ट आर्टरी में आएगा, फिर लेफ्ट आर्टरी से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है. द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आई एम हियर. The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on to the lung, from where the oxygenated blood is carried by pulmonary veins into the left atrium. And this pathway constitute the pulmonary circulation. ठीक है. तो लेफ्ट आर्ट्रियम तक मतलब कहाँ से कहाँ तक? आपका जो राइट वेंट्रिकल से जब पंप हुआ ब्लड, ठीक, एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी whereas the लेफ्ट वेंट्रिकल से. हाँ, तो मतलब कि आपका जो पल्मोनरी आर्टरी है आपका राइट एंड लेफ्ट, द राइट वेंट्रिकल से जब पंप हुआ ब्लड enters the pulmonary artery, and then left ventricle pumps the blood into the aorta, deoxygenated blood which is pumped into the pulmonary artery into the lungs, whereas oxygenated blood is carried by the pulmonary veins into the left atrium. मतलब कि जो पल्मोनरी आर्टरी है जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है onto the lungs, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अब वापस लंग्स के थ्रू आपके हार्ट में आ रहा है थ्रू द पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट आर्टरी, ये पूरा का पूरा आपका जो है फर्स्ट पाथवे फॉर्म करता है जिसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड
Entering the aorta is carried by the network of arteries, arterioles, and capillaries to the tissues, from where deoxygenated blood is carried by the system of veins, vena cava, emptied into the right atrium. अगर मैं बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा है कि सपोज आपका जो ये हार्ट है, ठीक, यहाँ पर आपका एक सुपीरियर वेना कावा होगा, सुपीरियर वेना कावा, एक होगा यहाँ पर इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। यहाँ पर आपका पल्मोनरी वेन होगा और यहाँ पर आपका पल्मोनरी आर्टरी होगा और यहाँ होगा ओरोटा। ये ऐसे करके बीच में इंटरसेक्शन लाइन है, इंटरआर्टरियल सेप्टम। फिर उसके बाद ये यहाँ पर आपका ट्राइकस्पिड वाल्व होगा और इस साइड आपका होगा बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब मैं जो दिखा रही हूँ कहाँ से कहाँ तक पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा वो देखो। सी पल्मोनरी सर्कुलेशन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से आपका लंग्स के पास जाएगा, यहाँ पर लंग्स है, फिर लंग्स से वापस जब पल्मोनरी वेन के थ्रू इस आर्टरी में आएगा, दिस इज योर लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको कहते हैं आप, इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर यही समझाया था पल्मोनरी सर्कुलेशन का। और अब दूसरा जो है सिस्टमैटिक वाला वो भी देख लो, उसको मैं दूसरे कलर से शो कर रही हूँ, ग्रीन से ले रही हूँ, ठीक है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या है कि इधर बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक, बॉडी पार्ट से यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा इधर ऊपर से बॉडी पार्ट से आएगा यहाँ पे, और जो ओरोटा से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट के पास के, मीन्स जो ओरोटा से गया बॉडी पार्ट्स के पास, फिर बॉडी पार्ट्स से इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर एंटर किया, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड गया, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड है। इस पाथवे को कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक पाथवे, ठीक है। ओके, सो द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन, मैं यहाँ हूँ यहाँ पे, the systematic circulation provides the nutrient, oxygen and other essential substances to the tissues and takes CO2 and oxygen, harmful substances, away for elimination. The unique vascular connection exists between digestive tract and liver. जैसे कि ये है, उसके अलावा एक और पाथवे एग्जिस्ट करता है आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और लिवर के बीच में, उसका एक नाम भी है, स्पेशल नाम है, that is hepatic portal system. So hepatic portal system is a pathway between the liver and the digestive tract. इसमें होता क्या है, that the hepatic portal vein carries the blood from intestine to the liver, and is delivered to the systematic circulation. So hepatic portal vein का काम होता है कि इंटेस्टाइन से लिवर के पास लेके जाएगा ब्लड को, और फिर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास कर देगा कहां पर, हार्ट में। समझ में आया कुछ? सी इसका काम है कि इंटेस्टाइन जो है उससे आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लिवर के पास जाएगा, और ये जो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम है, हेपाटिक पोर्टल वेन जो है यहाँ पर ये काम कर रहा है, हेपाटिक पोर्टल वेन लेके गया। अब ये लिवर क्या करेगा, यहाँ से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसको किस में भेज देगा, सिस्टमैटिक पाथवे में, मतलब कि सुपीरियर वेना कावा के मींस इंफीरियर वेना कावा के थ्रू इंफीरियर वेना कावा ये उसको हार्ट में भेजेगा, ठीक है। हार्ट मतलब हार्ट में कौन सा पोर्शन, कौन सा चेंबर, दैट इज योर राइट आर्टरी में, समझे। A special coronary artery of the blood vessel is present in our body exclusively for circulation of the blood to and from cardiac musculature. और coronary system, ये जो coronary system है हमारे blood vessel में, ये सिर्फ हमारे में ही present होती है। यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया है। सबसे पहले तो आप इसमें, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आर्टरी और वेन अलग अलग बने हैं, ये आपका आर्टरी है, ये आपका वेन है। आपको पता है दोनों में डिफरेंस क्या है,
दैट इज जो ट्यूनिका मीडिया होती है, किस में थिन होती है और किस में थिक होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मिडिल लेयर है, जो ये जो ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की लेयर है ट्यूनिका मीडिया बीच वाली, आर्टरी में थिक है और यहाँ पर आपको दिखेगी ये थिन है, ये व्हाइट के बाद डार्क ग्रीन कलर की जो लेयर है, ठीक है। और ये कैपिलरीज है। देन उसके बाद नेक्स्ट है द रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक सिस्टम। Normal activities of heart are regulated intrinsically, that is auto regulated by specialized muscles, जिसको nodal tissues कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे हार्ट में नोडल टिश्यूज हैं, SAN, AVN, AV, ठीक है, एंड परकंजी फाइबर, ठीक, एंड बंडल ऑफ हिज, ठीक। तो जो नॉर्मल एक्टिविटीज है ये सब इंट्रिंसिकली अपने आप ही रेगुलेट हो रही हैं, ऑटो रेगुलेटेड है थ्रू द नोडल टिश्यूज, राइट। Hence, the heart is called as myogenic. A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system. एक special neural system present होता है आपके medulla oblongata में, जो कि moderate करता है cardiac functions को, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, इट इज इनवॉलंटरी इन नेचर। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपार्ट फ्रॉम ANS कैन इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका काम होता है कि वो हार्ट रेट को इंक्रीज करे। जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हार्ट बीट इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, जो स्ट्रेंथ है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वो इंक्रीज होगी, एंड देयरबाय जो कार्डियक आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगा। ऑन अदर हैंड जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम है विच इज अनदर कंपोनेंट ऑफ ANS, वो डिक्रीज करेगा हार्ट रेट को, स्पीड करेगा कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल को, एंड देयरबाय कार्डियक आउटपुट। मतलब दोनों ही केस में जो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दोनों ही कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर रही हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में? जो सिंपैथेटिक होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो हार्ट बीट को इंक्रीज करेंगी, ठीक है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हार्ट बीट को डिक्रीज करेंगी, रेट ऑफ द हार्ट बीट को डिक्रीज करेंगे। समझ गए? So, adrenal medullary hormones also increase the cardiac output. मतलब ये जो पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्या क्या चीज जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, या एड्रेनल मेडुलरी नर्व्स हैं, एड्रेनल मेडुलरी नर्व्स हैं, मेडुलरी नर्व्स है ना, हार्मोन, सॉरी, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स हैं, ये तीनों के तीनों आपके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं। डिफरेंस इन दोनों में समझ गए कि कौन हार्ट रेट ऑफ हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा और कौन डिक्रीज करेगा, ये मेन है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला है हाई ब्लड प्रेशर। व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर? विच इज ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन। See, hypertension is a term for the blood pressure that is higher than the normal. So, what is then normal? Normal BP कितना होना चाहिए? 120/80. ठीक है, एक सिस्टोल एक डायस्टोल है, so 120/80 होना चाहिए। So, in this measurement जो 120 आपका है is the systolic or the pumping प्रेशर। ये सिस्टोलिक प्रेशर है जब कंट्रैक्शन होता है, एंड जिस ये जो 80 mmHg है ये आपका डायस्टोलिक है, मींस जब रेस्टिंग फेज होता है। If the repeated checks of the blood pressure of an individual is 140/90, means 140/90, then 140/90 or higher, then it is called as a hypertension. So high blood pressure leads to heart diseases, and it also affects the vital organs like brain and kidney. Then coronary artery diseases. What is coronary artery diseases? So coronary artery diseases is often referred to as atherosclerosis that affect the vessels that supply the blood to the heart muscles. इसमें mainly क्या होता है? ये मेन है फैक्टर कि इसमें जब जो वेसल्स जो प्रोवाइड करती हैं ब्लड टू द हार्ट मसल्स वो अफेक्टेड हैं, तो फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज उसको कहेंगे। इसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट, calcium, cholesterol in the blood vessels या fibrous tissue that will make the narrow of the lumen of the artery narrower. That will make the lumen of the artery narrower. Then the third one is angina pectoris.
A symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reached to the heart muscle. Angina can occur in men and women of any age, but it is more common among the middle-aged and elderly. It occurs due to the condition that affect the blood flow. So अगर ऑक्सीजन इनफ नहीं जा रहा है तो एजाइना है. कोरोनरी आर्टरी डिसीज में है ये कि वहां पर डिपोजिशन हो रहा है कैल्शियम फैट या कोलेस्ट्रॉल का एंड ब्लड सप्लाई अफेक्टेड है. Then the last one is the heart failure. Heart failure means the state when the heart when it is not pumping the blood effectively enough to meet the need of the body. It's sometimes called as conjunctive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptoms. Heart failure is not same as the cardiac arrest when the heart stops beating or heart attack when the heart muscle is suddenly damaged due to inadequate blood supply. Heart failure में mainly lungs का आता है. लंग्स की वजह से ये होता है कि लंग्स में कंजेशन हो जाता है, इसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है. इसमें आपको दिख रहा है हार्ट अरेस्ट क्या होता है. हार्ट अरेस्ट होता है व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग एंड हार्ट अटैक इज व्हेन देयर इज अ डैमेज इन द inadequate blood supply. ठीक है, suddenly there is a damage because of inadequate blood supply. And angina में क्या होता है when there is no enough oxygen, that is when the oxygen is not in a proper amount reaching to the heart. And coronary artery disease में जब deposition हो जाए calcium fat cholesterol या fibrous tissue का, जिसकी वजह से lumen of the artery narrow हो जाए, तो coronary artery disease. So friends, we have completed this chapter. Enjoy. Now what you have to do, you have to like, share and subscribe to my channel, and comment below. And if there is any suggestion that you want to give me, comment below and I'll reply back to you. Thank you so much for watching my video till the end. Thank you.